آج ہم مہاتما بدھ کی کچھ اور ورسز سنیں گے۔ آج کی بات کا موضوع ہے بیدار دل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ جو دل لرزتا ہو، جو ہر پل بے چین ہو، بھٹک بھٹک جاتا ہو، جو قابو میں نہ رہتا ہو، ایک دانشور اسے سنوار لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تیر بنانے والا اپنا تیر سیدھا کر لیتا ہے۔ جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی خشکی پر ڈال دی جائے تو تڑپتی ہے، ویسے ہی یہ دل بے چین رہتا ہے تاکہ خواہشات اور فریب کے دائرے سے نکل سکے۔ یہ دل قابو میں نہ آنے والا ہلکا آوارہ ہے، جہاں چاہے گرتا ہے۔ اسے سدھانا، سدھارنا، یہ ہے نیکی، کیونکہ سدھا ہوا دل، سدھارا ہوا دل ہی راحت، خوشی اور سکون لاتا ہے۔ یہ دل بہت دور تک جانے والا، اکیلا چلنے والا، جسم سے ماورا دل کے اندھیرے غار میں چھپا ہوا ہے۔ جو اسے قابو میں لے آتا ہے وہ پھر دنیا کے فریب کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جس کا دل اس سکوت، اس سکون، اس ٹھہراؤ سے خالی ہے، جو سچ کے، ریالٹی کے راستے کو پہچانتا نہیں، جس کا یقین ڈگمگایا ہوا ہے، اس کی دانائی کبھی کمال پر نہیں پہنچتی۔ ایک بات کو سمجھو، زندگی جینے کے دو ہی ڈھنگ ہے، یا تو مالک بن کے جیو یا غلام بن کر۔ ایک شہنشاہ کے طرز کی زندگی ہے اور ایک درباری اور غلامی کا طریقہ۔ جو زندگی غلامانہ ذہانت کے زیر اثر گزرتی ہے وہ در حقیقت زندگی کہلانے کے حقدار نہیں، وہ محض زندگی کا ایک سراب ہے، ہوائے خشک پتوں کو جیسے بھٹکاتی رہتی ہے۔ یہ زندگی بھی اسی طرح کی ایک بھٹکن ہے، ایک دھوکہ، جیسے انسان عالم خواب میں ہو اور جاگتے ہی سب ہوا ہو جائے۔ اس غلامانہ زندگی کے طریقوں کو، اس نفسیات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو بھی اس کیفیت کو نہیں سمجھ پاتا وہ کبھی اپنی زندگی کی لگامیں اپنے ہاتھ میں نہیں لے پاتا۔ وہ اپنی بادشاہت کبھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ غلامی اور ماسٹری کے ضابطے الگ الگ ہے، رولز الگ ہے، اصول جدا جدا ہے۔ غلام کی زندگی کا سینٹر، محور، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ رہتی ہے، جبکہ جو اپنی ذات پر حاکم ہو گیا، جس کو اپنی حکمرانی مل گئی، جس کو خود شناسی مل گئی، اس نے اصل میں دین پایا، اس کو ہی اصل میں روحانیت ملی۔ اور یہی وہ ابدی قانون ہے جو انسانوں کے ساتھ عدل سے کام کر رہا ہے۔ مالک بن کر جینا کیا ہے؟ مالک بن کر جینے کا مطلب یہ ہے انسان اس طرح سے جیے کہ جیسے زندگی اسی لمحے میں، اسی پل میں، اسی جگہ موجود ہے۔ کل کے وعدے پر نہ جیے، امیدوں کے سہارے نہ جی رہا ہو، بلکہ عین حقیقت میں جی رہا ہو۔ حقیقت جو کہ یہ پل ہے، حقیقت جو اس پل میں بس رہی زندگی ہے۔ حکمرانی کا مطلب یہ ہے تمہارا ذہن تمہارے تابع ہو اور تمہارا شعور جو تمہاری ریالٹی ہے وہ ہو تمہارا حکمران۔ ہوش، کانشسنس کو اگر اقتدار کی مسند پر رکھا ہوا ہے اور خواہشیں یا ذہن میں اٹھ رہی لہریں اگر محکوم ہے، تم خیالات کو استعمال کرو، نہ کہ خیالات تمہیں استعمال کر رہے ہو۔ زندگی کی بھاگ دوڑ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہو، اس شعور کے ہاتھ میں ہو، اس اویئرنس کے ہاتھ میں ہو، اور جہاں تم اسے لے جانا چاہو یہ وہیں جائے، نہ کہ تمہیں اپنے بے لگام ذہن کے پیچھے گھسکنا پڑے۔ بدھا کہتے تھے غلام کی زندگی ایک بے ہوش اور غافل کی زندگی کی طرح ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے
जैसे किसी सवारी का सवार नशे में धुत हो, लगामें ढीली छुट गई हो और घोड़े की मर्जी पर डिपेंड कर रहा हो कि वो जहां चाहे सवारी को ले जाए, चाहे वो इसे खाई में गिराए, तकलीफ में मुब्तला करे, जख्मी करे या इसे इसकी अबदी मंजिल से भटका दे। याद रखना, यहाँ कसूर घोड़े का नहीं, बल्कि कसूर इस गाफिल सवार का होगा जो बेहोश पड़ा हुआ है, जो अनकॉन्शियस जी रहा है। इंसान के वजूद की, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की मिसाल भी ऐसी इसी तरह है। ये एक रथ घोड़े की सवारी जैसा है। जब इंसान का शऊर बेदार होकर सवारी की लगाम थाम लेता है, तब जिंदगी सही रुख पर गामजन होती है। अलमिया ये है, हमारे अंदर सारा निजाम उलट पुलट दरहम बरहम हो चुका है। जो चीज ताबे होनी चाहिए थी, यानी हमारा जहन, हमारे हवास हाकिम बने बैठे हैं, और जिसे हाकिम होना चाहिए था, यह हमारी रूह, हमारा शऊर, हमारी अवेयरनेस, वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है। बज़ाहिर ये लगता है हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर दर हकीकत हमारा जहन हमें चला रहा है। जब तक ये तरतीब सही नहीं होती, जब तक फोकस, तवज्जो और आगाही ड्राइविंग सीट पर नहीं आ जाती, तब तक इंसान अपनी जात का मालिक हो ही नहीं सकता। असल जिंदगी खुद मुख्तारी का नाम है। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो वो सिर्फ जीता नहीं, बल्कि खुद मुजस्सम जिंदगी बन जाता है। सब कुछ तब्दील हो जाता है, गेम के रूल्स ही बदल जाते हैं। जहां कल तक कांटे ही कांटे थे, वहां फूल ही फूल खिले दिखाई देते हैं। जो हवास कल तक इंसान को भटका रहे थे, अब वही हवास इसे हकीकत का सुराग देने लगते हैं। जिन आंखों और कानों से इंसान ने अब तक सिर्फ जाहिर को, आश्कार को देखा था, मैनिफेस्टेड को देखा था, अब वही आंखें इसे बातिन का मुशाहिदा कराने लगती है। बसीरत ना आश्कार तक, अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने लगती है। याद रखना, कसूर आंखों का नहीं होता, ना ही ये दुनिया कोई पर्दा है। असल मसला अरेंजमेंट का है, इंतजाम का है, तरतीब का है। जो अंदर का, अपनी बीइंग का असल मालिक है, उसे अपने मुकाम पर बहाल करना असल मसला है। बस ये ऐलान काफी है, ये समझ काफी है कि मैं शऊर हूं, मैं जिस्म नहीं हूं, मैं जहन नहीं हूं। जैसे ही ये अंदरूनी निजाम, अंदरूनी बंदोबस्त तब्दील होता है, जैसे ही शऊर अपनी मसनद संभाल लेता है, इंसान हैरत अंगेज तौर पर देखता है कि इन्हीं आंखों से उसे बेसूरत, फॉर्मलेस की, बेरूत की, उस जात की झलक मिलने लगती है। मैटर, मादा एक घूंघट है जिसके पीछे असल हकीकत छुपी है, जो नॉन मटीरियल है। हवास ने इंसान को गुमराह नहीं किया, बल्कि इंसान का अपना होश सोया हुआ है। जब आप खुद गाफिल है, तो अपने हवास से बेदारी की उम्मीद क्यों रखते हैं? यह हवास तो गुलाम है, आप जैसे होंगे ये वैसे ही हो जाएंगे। जिंदगी के इस निजाम को बदलना ही असल रियाजत है, और इस तब्दीली की बुनियाद ही ये है कि जहन की हुक्मरानी खत्म हो और शऊर, आगाही की हुक्मरानी कायम हो। कब तक इंसान अपने ही थॉट्स, अपने ही ख्यालात, अपने ही जिस्म, अपनी ही ख्वाहिशात की उड़ाई हुई धूल के पीछे भागता रहेगा? क्या वक्त आ नहीं गया कि इंसान अपने इस काफिले का रहनुमा खुद बने? इंसान के अंदर दो शख्सियतें नहीं है, शऊर एक ही है, रूप दो है। जैसे ही आप अपने फोकस को, तवज्जो को मरकज, सेंटर में लाते हैं और जहन को आलाकार टूल बनाते हैं, तब एक हकीकी इनकलाब बर्पा होता है। इसके लिए बाहर से कुछ लाने, जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदरूनी निजाम, अंदरूनी तरतीब बदलनी है। जैसे किसी साज के तार ढीले हो तो सुर नहीं निकलता, इन्हें कस दिया जाए तो मौसू की फूट पड़ती है। इंसान के पास सब कुछ मौजूद है,
सिर्फ उसे दुरुस्त मकाम पर रखने की जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि जहन को कुचलना है, इसे दबाना है, इसे सप्रेस करना है। जो हकीकत को जानते हैं, जो आरिफ लोग हैं, वो कहते हैं जहन की फितरत फानी है, जहन की नेचर बेचैनी है। हर लम्हा नए नए थॉट्स, नए नए ख्यालात आ रहे हैं, तो बेचैनी तो होगी ही। ये पानी के बुलबुले की तरह लम्हाती है, इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। कौन हवा से लड़ता है? पानी के बुलबुले से लड़ना बनता है? बस इसकी फितरत को समझ लिया, यही काफी है। जैसे ही इंसान ने यह जाना, जैसे ही उसे ये इदराक हुआ कि ये थॉट्स, ये ख्यालात, ये जहन, ये जहनी लहरें महज एक आरजी तमाशा है, तो वो खुद ब खुद पुरसुकून होने लगता है। मसला कब पैदा होता है? मसला तब होता है जब इंसान इस आरजी को दायमी समझकर, मुस्तकिल समझकर पकड़ने की कोशिश करता है। जब तुम्हें बताया जाता है कि जिंदगी फानी है, तो तुम करते क्या हो? कभी नोट करना, तुम फौरन तलाश करते हो कोई ऐसी चीज जो अबदी हो, जो दायम हो, जो हमेशा हो। फौरन इस तलाश में निकल खड़े हो जाते। यही गलती होती है। अब्दियत को कहीं ढूंढना नहीं है, बल्कि इस फानी पन को, इस आरजी पन में हकीकत को देखना है। जैसे ही इंसान जागा, जो बाकी रह जाता है वही अब्दियत है। ख्वाहिशात की दौड़ है जिसे आप दुनियादारी कहते हैं। अगर इंसान रुक जाए, ठहर जाए और हकीकत का मुशाहिदा करे, तो उसे मालूम होगा कि मंजिल हमेशा उसके कदमों में ही मौजूद थी। वो जहां था वही मंजिल थी। असल फलसफा ये है कि हकायक को जैसा है वैसे ही देखो। अगर जहन टेढ़ा है, इसे जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश में मजीद मत उलझो, बल्कि इसे मुशाहिदे के जरिए सीधा करो। जैसे एक तीर साज तीर को गर्मी और दबाव से सीधा करता है, ऐसे ही होश की गरमाइश जहन को सीधा कर देती है। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है, नफरत है या कोई भी मनफी जज्बा है, तो इसके बरअक्स जैसे मोहब्बत या अमन का ड्रामा रचाना शुरू मत कर देना। झूठे चेहरे मत लगाना। अगर तुम गुस्से में हो तो सबसे पहले इसे तस्लीम करो, जानो कि मैं गुस्से में हूं। इस हकीकत को छुपाओ मत, भागो मत। जब तुम इस एतराफ, कबूलियत की तरफ जाते हो, तब जादू होता है। जब तुम अपनी खामियों को शऊर की रोशनी में ले आते हो और इन्हें कबूल करते हो, तो वो खुद ब खुद तहलील होने लगती है। अंधेरा रोशनी के सामने नहीं ठहर सकता, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो कुछ होने की, बीइंग की ख्वाहिश में हर वक्त मुब्तला रहता है। वो जो है इससे मुतमईन नहीं होता, बल्कि वो कुछ बनना चाहता है। हर वक्त बीइंग की एक रेस है, यही ख्वाहिश है, यही मुस्तकबिल की उम्मीद इसे इस पल से, इस हाल से गाफिल कर देती है। इसको एक मिसाल से समझाने के लिए बुद्धा ने कहा, इंसान की मिसाल उस मछली की जैसी है जिसे पानी से निकाल कर रेत पर फेंक दिया गया हो। वो तड़पती है वापस पानी में जाने के लिए। इंसान को गौर से देखो, ये भी आज तड़प रहा है, लेकिन इसकी तड़प की वजह यह है कि वो हकीकत के समंदर से निकलकर ख्वाहिशात के साहिल पर पड़ा तड़प रहा है। वो समझता है कि अगर ये ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो मेरा मसला हल हो जाएगा। अगर मजीद दौलत, शोहरत या मजीद नेकियां कमाई तो ये तड़प मिट जाएगी। हालांकि तड़प एक ही सूरत में मिटने वाली है। तड़प तभी मिट सकती है जब मछली को दोबारा समंदर का पानी मिल जाए, जब वो अपनी असल यानी जात के समंदर में डूब जाए। ये बीइंग की दौड़ ही असल फरेब है। इंसान को सिर्फ होना है, जस्ट बीइंग। जो आप इस लम्हे में हैं वही हकीकत है, इसके अलावा सब धोखा है। ख्वाहिशात से भरा हुआ जहन
गीली लकड़ी जैसा है जिसे जलाने की कोशिश की जाए तो आग नहीं जलती, सिर्फ धुआं उठता है। जब तक जहन में उम्मीदों आरज़ुओं की नमी बाकी है, हकीकत दिखाई नहीं देगी। जब बुद्धा कहता है जहन को सुधार लो, सीधा कर लो, तो वो इसको दबाने की बात नहीं कर रहा, इससे भागने की बात नहीं कर रहा। बुद्धा कहते हैं जहन को काबू में करने का मतलब ये नहीं कि जज्बात को जबरदस्ती दबा लिया जाए। जज्बात को दबाना डिप्रेशन एक खतरनाक मर्ज है। इससे अंदरूनी घुटन जन्म लेती है, इससे नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती है। असल तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली या इनकलाब, वापसी की तरफ रुजू या अपनी तवन्नाई का रुख मोड़ना। देखो, गुस्सा भी एक तवन्नाई है। अगर इसे दबा दिया जाए ये एक जहर बन जाएगा, और अगर इसे दूसरों पर निकाला जाए ये फसाद बन जाएगा। दानाई क्या है? दानाई कहाँ है? हिकमत यह है कि इस तवन्नाई को किसी मस्बत काम में लगा दिया जाए। जैसे जब गुस्सा आया तो कोई मशक्कत कर ली, भागना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, या कोई भी तख्लीकी काम शुरू कर दिया। इस तरह वो मनफी लहर एक मस्बत ताकत में बदल जाएगी। ये जज्बात को कुचलना नहीं, ये इनकी तत्हीर का अमल हो जाएगा। इंसान को चाहिए कि वो तवाजुन, बैलेंस पैदा करे, जिसे हरफ आम में ज़ब्त, कंट्रोल कहा जाता है। वो दरअसल एक खौफजदा हालत है। जो शख्स गलती करने से डरता है वो कभी जिंदगी की सच्चाई को नहीं पा सकता। जिंदगी गलतियों से बचने का नाम नहीं है, जिंदगी है होश के साथ जीने का नाम। याद रखना, गिरना बुरा नहीं है, गिर कर न उठना बुरा है। बहुत ज्यादा एहतियात इंसान को मुर्दा बना देती है। जिंदा इंसान गलतियां भी करता है और इनसे सीखता भी है, और सीख कर अपनी राख से सोना भी निकाल लेता है। बुद्धा कहते हैं जिस शख्स का जहन गैर मुस्तकिम है, जिसकी अंदरूनी दुनिया में हलचल है, उसे बाहर की दुनिया भी हिलती नजर आती है और बेचैन नजर आती है। दुनिया का अपना कोई रंग नहीं, ये आपके जहन का अक्स है। अगर आपके अंदर सुकून है तो पूरी दुनिया कायनात पुरसुकून लगेगी। अगर आपके अंदर का दिया लरज रहा है तो बाहर के साए भी लरजते दिखाई देंगे। इसलिए साए को पकड़ने के बजाय अपने अंदर के दिए को मुस्तकम कर दो। दौरे हाजरा में यकीन और अकीदे की बात करना मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि बेसिकली ये शक का दौर है। लेकिन हकीकत तक पहुंचने के लिए अंधी अकीदत की जरूरत नहीं होती। ये एक साइंसी अमल है। जैसे पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना जरूरी है, खुदा को मानना या न मानना इस कीमिया पर असरअंदाज नहीं होता। इसी तरह सुकून और आगाही हासिल करने के लिए किसी मखसूस मजहब या अकीदे का होना शर्त नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने, खामोश होने का फन सीखना बुनियादी शर्त है। जब इंसान हक को जान लेता है तो यकीन खुद ब खुद आ जाता है। खुलासा ये कि जिंदगी को अधूरा मत छोड़ो। जब तक आपकी हकीकत और बसीरत मुकम्मल नहीं हो जाती, आप बेचैन रहेंगे, और इस बेचैनी का इलाज बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की दुनिया में है। अपनी अंदर की दुनिया को मुनज़्ज़म करने के लिए गुलामी की जिंदगी छोड़े और अपनी जात के बादशाह बने। ये बादशाहत किसी तख्त व ताज की मोहताज नहीं, बल्कि एक बेदार मगज और जिंदा शऊर की मुतकाजी है। जिस लम्हे तुम्हारी तवज्जो का मरकज तब्दील हो गया, जिस लम्हे तुमने ख्वाहिशात के पीछे भागना छोड़कर अपने वजूद में ठहरना सीख लिया, उस लम्हे तुम इस कैद खाने से आजाद हो जाएंगे जिसे दुनिया कहा जाता है।